Good evening. I, Richa Kamal, welcome you all on behalf of entire CIMP family for today's webinar. Before we start, I take this opportunity to brief our Honorable Speaker of the Day about our institute, a brainchild of Honorable Chief Minister Sri Nitish Kumar, who also happens to be the chairman of Board of Governors of the institute. CIMP was established in 2008 as an autonomous institute on the lines of IIMs with active support and help from Government of Bihar to resurrect the educational glory of Bihar. Recently, CIMP has secured position in top 100 management institute under the NIRF ranking 2022 conducted by Ministry of Education, Government of India. I, on behalf of entire CIMP family, take this opportunity to heartily welcome Honorable Guest Speaker Mr. Chandrasekhar Mandal, founder and CEO Digital Labor Chalk. Sir, please enlighten us with your knowledge. Hello all. Hello, sir. Yeah. So thank you for the introduction. So guys, my my name is Chandrasekhar Mandal. I'm the founder and CEO of Digital Labor Shop. So I have started my entrepreneur journey before 2 years in 2020. See, I believe you guys are today here. So maybe you want to be an entrepreneur, or those who don't want to be an entrepreneur. I believe after this session, I can add some value in you, and you will choose the path of becoming an entrepreneur. See, when we talk about the entrepreneurship, many of you in today world, nowadays in today world, startup craze is going so high. After you must have seen the Shark Tank. After Shark Tank, people are thinking, okay, I will start my startup. And because people think after when they think about the startup, they think, okay, paisa jada hai, and I'm going to raise my fund from the market. I will build my product. And today students are very passionate. When you will take see the data of the today startup, mostly startup has been opened by the students. So when if suppose any one of you wants to start your startup, so what do you want to the things to start your startup? So you need a very good idea. When I say the good idea, people mostly think what is the good idea. I'm talking about my idea. When I thought I will uh, create the digital labor shop, people are like, what you are making? I said I will make a platform where worker will register and the customer will hire from that platform. People were like, okay, but what is the user? Is worker are as much knowledgeable they can register on your platform, and why customer will choose your product? So on that time, a word which is said by the Dr. Albert, innovation is seeing what everybody has seen and thinking what nobody has thought. So this is when I started my startup. I got the idea because daily when I used to go to my office, I used to see people are standing on the labor job. So many people are daily saying this thing. But why did I choose to start this startup? The reason behind it, because I thought this is a problem and I can solve it. So first thing, you need a good idea. Second, you need self-belief, because when I started my startup, people are like, okay, you want to develop, but why you are creating the labor shock kind of platform? People are not educated, they can't register, and why people will choose you? Because they still they want to go with the contractor. And I said no, they will choose me because I am going to give us the more uh, benefit compared to the contractors.
So you need a self belief, because people from the everywhere is going to say, okay, this is not possible. And third thing, you need a hard work. So it is like एक कहावत है, आग का दरिया है, चल के जाना है. So when you are starting a startup and you want to be an entrepreneur, you need to do so much hard work. वो ऐसा नहीं होता कि in a one night you can become a entrepreneur. When in January 2020, I got this idea. I thought, okay, I will start to work on that. In March 2020, government announced the lockdown, and I was like, ठीक है, time to मिला, and I started to do the survey. And in survey, I found, okay, this market is very huge. If I can cover 1 to 2% of this market, my company is going to be the unicorn. So on that time I started to do the survey. I surveyed approx for 1 year. I did the survey, and after that I came on the conclusion. Okay, I'm lefting my job and I will start my startup. When I started to do the my work on the startup, till 1 year I had no clue, okay, I'm going to be the successful startup or not. But after some point of time, I started to see the improvement. People started to like my product, because sometimes I used to think, okay, in front of them which I am pitching, they are the person, they are understanding कि मैं बात क्या करना चाहता हूँ, और I want to create a lever chalk, digital lever chalk, but क्या उन्होंने देखा भी है. So from that point, I started to get my success, and I started to build. So in today session, I'm going to tell you, when if any one of you want to start your startup, so what points you have to consider, and in which way you can, what are the things you should take care कि ये point होते हैं, इसको take care करना है. Because when okay, you have a good idea, but how you are going to present? When someone will say, okay, what is your business plan, what point you will show? So all this thing I'm going to tell you in this session. So when I say startup, so see, startup word, so what is the definition of startup? When I know, when I started to start my startup, and in 1 year I had no clue what is the startup. Do my startup come into the startup definition? Okay, this is okay, but because I used to think, okay, I am developing the technology platform, and I'm making a digital labor chalk. But क्या ये उस स्टार्टअप में आ जाता है जो स्टार्टअप की डेफिनेशन होती है? I had no clue. But after some point of time, I got to know, okay, startup can be anything. Any company which is starting making a unicorn come into the startup definition. So, and so when I say startup can be any business which has just started. And what is the type of startup? So type of startup, see, some people are doing the startup in the health tech. Some people are creating the social impact startup. Some people are creating finance related product. When in 2007, Paytm was the startup. PhonePe is the startup. Now you guys are seeing Razorpay. It is also a startup. So this is fintech startup. Social networking startup, you are seeing that all the short video platform is a startup. Education, Byju's is a startup. So these are the area where any people can start. And there is a number of lists in construction, real estate. You can open the startup. So you guys are from the Bihar. If I talk about the as per the data of Bihar in this year, I think approximately 1200 plus startup has registered in the Bihar. But we are, I can say now, because अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र की, so in Maharashtra approximately 12,000 startup has registered. But why we are very backward? The reason behind it, because we when I go into the Bihar and I will ask 100 student ki what do you want to be, and so they are like, मुझे सरकारी नौकरी करनी है.
I want to be IPS, I want to be IAS. उनको सरकारी नौकरी, they want to be a chaprasi of the in government job, but they want to open the startup, they don't want to do the job. The reason behind it, because we people always think, okay, the government job is more secure. So I believe you guys will not take this kind of decision. Start your startup. The world is full with the problems. When you will see everywhere, you will see the problem. You will have to be the person who can see the problem, because see, as Dr. Albert has said, innovation is seeing what everybody has seen and thinking what nobody has thought. तो वो निकालना है अपने आप में कि वो चीज जो है ना, देखने का नजरिया बदलना है. हम लोग देखने का नजरिया बदल देंगे कि नहीं, ये भी प्रॉब्लम है, बट वी कैन. अब सपोज इफ आई टॉक अबाउट कि लेबर चौक पे लेबर आती है, खड़ी होती है, वो सदियों से चल रहा था, आज भी चल रहा है. लेबर चौक पे लेबर आ रही है, खड़ी हो रही है, बट उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, ये भी एक आइडिया है. सो प्रॉब्लम भरी पड़ी है. So suppose any one of you wants to start your startup. So first you will have to create the business plan. कि मेरा business plan क्या है. And when you are going to create the business plan, तो उसके कुछ points होते हैं which you have to consider. Suppose if any one of you coming as a business plan कि this is my business plan. So from where you have to start. So उसमें क्या होता है? First point is the problem. So what problem do you want to solve? वो प्रॉब्लम क्या है? द प्रॉब्लम कैन बी सिंगल थिंग एंड द प्रॉब्लम कैन बी मल्टीपल ऑल्सो. यूजुअली व्हेन एनी न्यू फाउंडर स्टार्ट टू डू द स्टार्टअप, he thinks I will solve multiple problem, 10 problem, 20 problem, but this doesn't matter. If you are solving a single problem, you are a founder, you are solving something. So first, when you prepare your business plan, first mention what is the problem which you have seen. After that, your solution, what solution you are creating for that. If there is a problem, if people are not able to book taxi, तो उसके लिए solution क्या है? So you are going to create a platform where they can directly book the taxi, जो कि ओला ने सोचा था. Also, when you the third point is, when you are developing any solution, you think कि what kind of uniqueness you are putting in your solution. What is unique? Why people will choose your product than mine? Because if you don't have any unique thing in your product, no one is going to, anyone can come tomorrow and he is going to copy. So वो uniqueness होने चाहिए, because before you already someone is working on that. If today you want to think, okay, I will make Ola for the Bihar, कि बिहार का खुद का एक ब्रांड होगा, ओला उबेर टाइप का, एंड टैक्सी बुकिंग प्लेटफॉर्म होगी. So what uniqueness you are giving, because already people are working in that area. So वो uniqueness होनी चाहिए. And third is कि market fit है भी वो प्रोडक्ट जो आप क्रिएट करना चाहते हैं, वो मार्केट में फिट भी बैठ रहा है. ऐसा तो नहीं है कि कुछ आप ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं जिसको मार्केट में रिक्वायरमेंट ही नहीं है. अगर वो फिट है तो क्यों है. अब सपोज करते हैं कि इफ यू गाइस वांट टू क्रिएट अ टैक्सी प्लेटफॉर्म, और वो टैक्सी प्लेटफॉर्म आप ओपन करना चाहते हैं, तो आपके कॉम्पिटिटर कौन कौन से हो सकते हैं? ओला, उबेर, आर्यागो इन बिहार. सो दे कैन बी योर कॉम्पिटिटर. सो हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम देम, वो चीजें मेंशन करनी पड़ेगी. बिकॉज व्हेन यू वांट टू विन एनी वॉर, तो फर्स्ट यू विल हैव टू प्रिपेयर कि तुम उनसे तुम्हारे जो एनिमीज है वो तुमसे अच्छे क्यों हैं, क्या तुम उनसे फाइट में जीत सकते हो. सो वो प्रॉब्लम पहले अपने कॉम्पिटिटर को समझो, व्हाट दे आर गिविंग एंड व्हाट यू आर क्रिएटिंग. इफ यू आर क्रिएटिंग less than your competitor, customer is going to choose them, क्योंकि उनको कस्टमर का कोई रिलेशन नहीं होता. कस्टमर, what customer wants
कि मुझे अच्छी सर्विस कहाँ मिलेगी, मुझे सस्ता सामान कहाँ मिलेगा। एंड इन इंडिया पीपल ऑलवेज गो बिहाइंड द मनी, कि सस्ता सामान मिलना चाहिए और अच्छी सर्विस भी मिलना चाहिए। सो वो कॉम्पिटिटर एनालिसिस बहुत जरूरी है आपको करना, कि कॉम्पिटिटर एनालाइज करिए कि मेरा प्रोडक्ट दुनिया से अच्छा कैसे बनेगा। इफ आई एम क्रिएटिंग समथिंग तो वो डिफरेंट क्यों है। सेकंड थिंग इज रेवेन्यू। ओके, यू आर क्रिएटिंग एनी बिजनेस, फ्रॉम वेयर यू विल गेट द रेवेन्यू। वो मायने नहीं रखता कि टुमारो यू आर फ्रॉम फर्स्ट डे यू आर गोइंग टू स्टार्ट द रेवेन्यू और सेकंड डे से आप रेवेन्यू मिलेगा। इट डजंट मैटर, द मैटर इज कि फ्रॉम व्हाट टाइम यू विल स्टार्ट टू गेट द रेवेन्यू। हो सकता है कि इन इनिशियल स्टेज यू विल से ओके, इनिशियल स्टेज आई विल बिल्ड द क्रेडिबिलिटी इन द मार्केट, आई विल गेन द कस्टमर, एंड आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम आई विल स्टार्ट टू गिव द I will start to charge the from the customer. And you have an example like Jio. Jio ने फर्स्ट ईयर में एक साल तक सब कुछ फ्री दिया। पीपल स्टार्टेड टू यूज अनलिमिटेड इंटरनेट, कॉलिंग इज फ्री। उसके बाद क्या हुआ कि जियो ने आफ्टर 1 ईयर उसने अपने प्लान को जो है पेड कर दिया, एंड टुडे ही इज लीडिंग इनटू द नेटवर्क मार्केट। सो पैसा कहाँ से आएगा? सेकंड इज द ट्रैक्शन। अगर वो, क्या आपके पास अभी तक कोई ट्रैक्शन है या फिर आगे कोई ट्रैक्शन हो सकती है, वो चीजें हमें देखनी है कि ट्रैक्शन हमारे पास क्या है। अगर जैसे मैंने कहा कि इट डजंट मैटर कि टुडे यू आर अर्निंग और टुमारो यू विल अर्न, मगर आप अर्न क्या कर रहे हो और कब से अर्न करोगे, तो वो प्रोजेक्शन होना चाहिए नेक्स्ट की मैं अगले 5 साल में ये करूंगा। ओके, इन सेकंड ईयर आई एम गोइंग टू बी इन लॉस, सेकंड ईयर में भी मैं लॉस में रहूंगा, थर्ड ईयर में मेरे बैलेंस शीट में प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो चीजें हमें होना चाहिए कि हमारे पास जो है एक प्रोजेक्शन होगा नेक्स्ट स्टेप, कि हमारा प्रोजेक्शन क्या है। एंड सी, मैंने अपनी लाइफ में व्हेन आई स्टार्टेड माय स्टार्टअप आई थॉट कि आई कैन सिंग, मैं अकेले ही सारा कुछ कर सकता हूँ, बट वो पॉसिबल नहीं होता। सो यू विल हैव टू बिल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। यू नीड, इफ यू नीड एक्सपर्ट इन एवरी डोमेन। वो ऑपरेशन हो सकता है, वो मार्केटिंग हो सकता है, वो टेक हो सकता है, बिकॉज इन एवरी डोमेन यू नीड एक्सपर्ट। सो वेन एवर यू आर स्टार्टिंग योर स्टार्टअप, बिल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। वो टीम ऐसी होनी चाहिए जो आपके विजन को समझ सके हो कि आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में, वो समझना बहुत जरूरी है। अगर वो टीम आपके विजन से मैच नहीं करता है, सी इन इनिशियली एनी पीपल कैन कम एंड से कि ओके आई वांट टू बी द पार्टनर इन योर स्टार्टअप और इन योर जर्नी आई वांट टू कंट्रीब्यूट, बट वो एक समय के बाद ना खत्म हो जाता है। बिकॉज एनी पर्सन विल कम एंड ही विल वर्क फॉर द 1 मंथ 2 मंथ एंड ही विल सी कि कुछ है नहीं ऐसा कुछ भी इस स्टार्टअप में, तो कुछ दिख ही नहीं रहा यार कि जो अच्छा काम कर सकता है या हमें लगता है कि आगे बढ़ेगा। बिकॉज सम पीपल आर लाइक, वो एक तो फेलियर के बाद रुक सकते जाते हैं, बट फेलियर इज द पार्ट ऑफ द सक्सेस। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड विद एवरी फेलियर यू विल लर्न समथिंग कि मुझे क्या करना है। उसके लिए टाइम चाहिए, वो लोग चाहिए जो आपके उस विजन को समझे कि मैं इसके साथ, अगर वो फेल भी हो रहे हैं ना तो साथ में मिलके फेल हो रहे हैं। क्योंकि कई लोग आते हैं इस जर्नी में, व्हेन यू आर स्टार्टिंग द स्टार्टअप ना, लोग आएंगे आपको बोलेंगे कि मैं आपके साथ ये इस जर्नी में शुरुआत करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ जो है इस जर्नी में चलना चाहता हूँ, मगर एक समय के बाद वो अलग हो जाते हैं। सो चूज योर पार्टनर वेरी वाइजली। दूसरा ये है कि अगर सपोज कई स्टार्टअप ऐसे होते हैं जो इनिशियली दे डोंट नीड फंड। सो व्हेन आई हैड स्टार्टेड माय स्टार्टअप, मेरे दिमाग में क्या था कि ओके आई वेंट टू द लेबर चौक, मैंने वो डायरी ली और लोगों के नंबर नोट करना शुरू कर दिया, विद नेम एंड नंबर मैंने नोट करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि इतना है। उसके बाद आफ्टर सोशल मीडिया पे जो है फेसबुक फ्री है, मैं फेसबुक पे गया, मैंने पोस्ट क्रिएट करी कि यहाँ से बुक करें, एंड पीपल स्टार्टेड टू, उन्होंने कुछ देखा और उन्होंने ऑर्डर दिया। मेरे का काम क्या था कि मैं बस डायरी में देखता था उस जगह का कौन सा लेबर है, मैं उस जगह पे भेज देता था। सो मैंने डायरी और पेन से शुरुआत करी थी। आई हैव टेकन अप्रोक्स 1000+ डेटा ऑफ द वर्कर्स, और उसके बेस पे मैंने उनको जॉब प्रोवाइड करनी शुरू करी।
एंड व्हेन आई स्टार्टेड टू गेट अ गुड नंबर, तो मुझे पता चल गया ओके व्हाट एवर आई एम डूइंग इज करेक्ट, पीपल आर लाइकिंग माय प्रोडक्ट, और उनको चाहिए ऐसी सर्विस चाहिए, बिकॉज दे डोंट हैव इनफ टाइम टू गो टू द लेबर जॉब, और वो जो है लेबर जॉब पे जाके वर्कर को हायर करेगा। तो वो तुम्हें चाहिए होता है कि तुम्हें क्या उस समय पे पैसों की जरूरत भी है, अगर है तो उसको पिच डेक में रखो कि हाँ, क्योंकि इनिशियली तुम अपना बिजनेस प्रेजेंट कर रहे होते हो इन इंक्यूबेशन और एक्सीलेटर के सामने, बट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपके साथ क्या होगा कि आप वीसीस के सामने बैठे रहोगे, एंजल इन्वेस्टर के सामने, जिनसे आप पैसे की डिमांड कर रहे होंगे। आप उनसे बोल रहे होगे कि मेरे बिजनेस में पैसा लगाइए, क्योंकि मेरा बिजनेस अच्छा है। बिकॉज अगर रिसेंट एग्जांपल की बात करूं मैं, आपने सबने शार्क टैंक देखा था, वहां पे जो लोग बैठे थे वो सब पैसा लगाना चाह रहे थे, उनको पैसा ही लगाना था वहां बैठ के। मगर क्यों? क्योंकि वो पूरा बिजनेस देखते हैं, उसके बाद वो डिसीजन लेते हैं कि उसमें पैसा लगाया जाए। एंड अगर मैं डेटास की बात करूँ तो इन आज के डेट में ना जो हाईली रिटर्न मिलता है वो मिलता है स्टार्टअप्स में। आपने उसमें देखा होगा कि शादी.com के फाउंडर थे जो बैठे हुए थे, उन्होंने एक समय पे ओला में 10 लाख रुपीज लगाया था एज अ सीड फंड, और वो आज जो है 100 करोड़ से ऊपर है, क्योंकि उस तरह का रिटर्न मिलता है मार्केट में। सो सपोज कि यू गाइज थॉट कि मुझे स्टार्टअप बनाना है, यू प्रिपेयर द पिच डेक की ये सारी चीजें हैं और इस तरह से होगा, बट वो उतना तो थोड़ी हो सकता है। लाइक वैन आपने वो डॉक्यूमेंट पे तो फॉर्म कर लिया, बट उस डॉक्यूमेंट के बाद क्या, लाइक योर बिजनेस, आपने वो बिजनेस देख लिया कि मेरे बिजनेस में ये सारी चीजें हैं, प्रॉब्लम ये है, सोल्यूशन ये है, उसके बाद क्या होगा? आपको एक प्रोटोटाइप बनाना पड़ेगा। अब प्रोटोटाइप क्या होता है? प्रोटोटाइप फर्स्ट वर्जन होता है आपके ड्रीम प्रोडक्ट प्रोडक्ट का, जो आप लाना चाहते हैं, कि आपने एक ड्रीम देखा कि मैं इस प्रोडक्ट को लाना चाहता हूँ, वो एक पहला वर्जन है उस चीज का, जिसमें आपने सोचा कि मैं इसको जाऊंगा टेस्ट करूंगा। तो उसको जो है क्या होता है कि जब मैं अपनी बात बताऊं, मैंने जब स्टार्ट किया था अपना, तो मैंने पेन पेपर से शुरू किया, उसके बाद मैंने जो है एक वेबसाइट बनाई। वो वर्डप्रेस की वेबसाइट थी, एक छोटा सा अमाउंट देके, जिसमें मैंने बोला रजिस्ट्रेशन फॉर्म रहेगा और ये सारी चीजें रहेगी, वहां पे लोग जो है रजिस्टर करेंगे। लोगों ने उसको जो है उस पे जाके रजिस्ट्रेशन करना शुरू करा। सो मेरे पास एक डेटा आ गया, ओके ये प्रोटोटाइप जो है मेरा, उस पे लोग रजिस्टर कर रहे हैं। उस वो जो छोटा सा चीज है, जब वो प्रोटोटाइप में कुछ कमियां भी होती है, कि आप जब वो प्रोटोटाइप बनाए हैं और वो प्रोटोटाइप आपका बन चुका है, जो छोटा एक बहुत ही स्मॉल थिंग्स होता है, उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद आप उसे मार्केट में टेस्ट करने जाते हैं। मार्केट में टेस्ट करने के बाद कि वो चीज मैंने जो बनाई है वो सही भी है, क्या लोग उस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि आप एक चीज बना के जब मार्केट में जाते हैं, यू विल फाइंड अ कस्टमर कि आप इसे यूज करिए, सो दे आर गोइंग टू गिव यू द फीडबैक कि वो चीज सही है या इसमें ये कमी है, इस चीज को सही करना है, उसको सही करना है। सो यू रिसीव द फीडबैक, और उसके बाद रिसीव करने के बाद अगेन आप प्रोटोटाइप पे वर्क करते हो, अगेन आप मार्केट में जाते हो। और ये प्रोसेस जब तक होता है जब तक आपका प्रोटोटाइप सक्सेसफुल नहीं हो जाए। अगर आपका एक प्रोटोटाइप सक्सेसफुल है, बिकॉज एनी इन्वेस्टर विल कम है, ही विल आस्क कि मार्केट में टेस्ट किया था, बिकॉज सम कई आइडियाज जो है ऑन पेन पेपर वो बहुत कूल दिखते हैं, कि हाँ बहुत कूल आइडिया है, अच्छा लग रहा है, ये हो रहा है, मगर जब आप मार्केट में टेस्ट करने जाते हो ना, बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो वो चीज आपको ना देखना होता है कि प्रोटोटाइप मैंने बना लिया, उसको कस्टमर के सामने, जो कस्टमर मेरा बैठा है उसको मैं अगर शो कर रहा हूँ, तो क्या वो एक्सेप्ट कर रहा है उस चीज को, क्या वो मेरा प्रोडक्ट कल के डेट में खरीदना भी चाहता है या नहीं खरीदना चाहता है। तो वो सारी चीजें होती है, एक उस पर हमें काम करना होता है कि आप जैसे ही सोल्यूशन हो गया। अब मान के चलते हैं कि आपका प्रोटोटाइप जो है बहुत ही कूल है, आपने प्रोटोटाइप को टेस्ट किया, वो सारी चीजें हो गई, प्रोटोटाइप। अब दूसरा आता है फंडिंग। अगर आपका प्रोटोटाइप सक्सेसफुल है, सो यू नीड फंडिंग टू डेवलप द एमवीपी। एंड एमवीपी फुल फॉर्म इज मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट, कि ठीक है मैं ये चीज मैंने प्रोटोटाइप क्रिएट किया एंड उसको जो है मैंने टेस्ट कर लिया,
अब वो एमबीपी बनाने के लिए समटाइम यू नीड्स फंड। अब वो फंड किस किस तरह के हो सकते हैं? या तो आप इक्विटी बेस पे लीजिए फंड, बिकॉज दो तरह से ही आप मार्केट से फंड उठा सकते हैं। या तो आपको कोई लोन दे देगा, या तो फिर जो है आप जो है इक्विटी बेस पे आपको फंड दे देगा कि आपके कुछ शेयर्स ले लेगा कंपनी के, बोलेगा कि मेरे को 10% शेयर दे दो, मैं 10 लाख रुपए दे दूंगा। या तो बोलेगा कि ठीक है आप जो है मेरे से 10 लाख रुपए ले लो और बाद में जो है इस इंटरेस्ट के साथ रिटर्न कर देना। कुछ ऐसे भी फंड होते हैं जहाँ पे लोग आपसे बोलेंगे ठीक है मुझे ना आज आप में मुझे आइडिया थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है, मैं क्या करता हूँ आपको जो है ना 10 लाख रुपए दे देता हूँ। 10 लाख रुपए जो है एज ए लोन ही दे रहा हूँ, मगर कल को जो अगर कोई नया इन्वेस्टर आएगा ना और वो जिस राउंड पे लेगा उस राउंड पे उससे ना थोड़े कम में जो है मुझे जो है इतने इक्विटी आप इश्यू कर देना, वो कन्वर्टेबल डेब्ट हो जाए। तो दो तरह के पैसे होंगे, या तो इक्विटी के बेस पे मिलेगा या तो फिर जो है डेब्ट देगा। अब ये देगा कौन? या तो आप खुद से पहले ले लीजिए, या तो आपके पास खुद का पैसा हो। दूसरा ये हो कि आपके पास जो है आपके फैमिली मेंबर के पास हो। अगर फैमिली भी नहीं है तो आज के डेट में आपने देखा होगा देयर आर सो मेनी स्कीम की स्टेट गवर्नमेंट हेल्प कर रही है। यू गाइस इन बिहार, तो बिहार में जो है स्टार्टअप उद्यमी योजना है, सी प्रधानमंत्री सॉरी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, वहां से 10 लाख रुपीज मिल रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज है वो देती है। सो गवर्नमेंट आपको कई तरह के लोन्स देती है, ग्रांट्स देती है। लोन्स वो जिसपे आपको पैसे इंटरेस्ट देना होता है, और ग्रांट वो होता है जो फ्री होता है, वो आपको एज ए हेल्प के लिए देती है कि ओके यू वांट टू स्टार्ट योर स्टार्टअप, और उन्हें लगता है कि कल के डेट में ये अच्छा करेगा, तो वो आपको एज ए ग्रांट देती है कि आप ये 10 लाख रुपए लीजिए, 5 लाख रुपए लीजिए और अपना स्टार्टअप करिए। इसी के बाद जब ये क्या होता है कि पहले तो हमने इस तरह से शुरुआत होती है, या तो आपके पास पैसा है फिर आप अपनी फैमिली से मांगने जाते हो, फैमिली से आगे बढ़ते हो तो आपको गवर्नमेंट दिखाई देता है। कुछ इंक्यूबेटर एंड एक्सीलेटर होते हैं जो आपको पैसा देते हैं, वो बोलते हैं कि ठीक है आप अच्छा काम कर रहे हो। जैसे अगर मैं सीआईएमपी की बात करूँ, सीआईएमपी का खुद का भी एक इंक्यूबेशन सेंटर है, जहाँ पे आप लोग जो है अगर आप कल के डेट में स्टार्ट करते हो एज ए इंक्यूबेटर कर सकते हो। तो वो मदद करती है कुछ फंड के साथ। आज के दिन अगर मैं बात करूं इसके बाद, देखिए आप ये जो ना छोटे छोटे फंड होते हैं 10 लाख रुपीज, 20 लाख रुपीज, स्टिल गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। उसके बाद जो है ये हमारा जो इंक्यूबेटर्स हैं, एक्सीलेटर हैं, वो भी सपोर्ट करते हैं। बट व्हेन यू नीड मोर फंड, लाइक यू नीड 50 लाख, 1 करोड़, तो उस स्टेज तक ना एंजल इन्वेस्टर विल कम। एंजल इन्वेस्टर सपोज की आप में से कोई आता है एंड वो मेरे सामने आइडिया प्रेजेंट करता है एंड आई थिंक यार ये इस आइडिया में दम है एंड आई वांट टू इन्वेस्ट। तो एंजल इन्वेस्टर एक सिंगल इन्वेस्टर होता है जो इन्वेस्ट कर देता है कि आपने बोला कि मुझे 50 लाख रुपए चाहिए, मुझे लगता है अच्छा आइडिया में दम है, मैं 50 लाख आपके उसमें लगाता हूँ बिजनेस में। तो वो एंजल इन्वेस्टर होता है। बट व्हेन यू रेज फंड, लाइक बड़ा फंड चाहिए, यू नीड 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ और 10 करोड़, तो उस समय यू गो टू द वीसी। वो वीसी का पोर्शन आता है जहाँ पे वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट एक ग्रुप होता है एंजल इन्वेस्टर का, जहाँ पे मुझ जैसे 10 जने और बैठे होंगे। वो लोग आएंगे और वो बोलेंगे ओके आपको आइडिया प्रेजेंट करते हैं, आप बोलते हैं कि मुझे जो है 10 करोड़ रुपए चाहिए। तो वो 10 करोड़ रुपए बोलते ठीक है, मैं जो है इस तरह से हम इतना इतना कंट्रीब्यूट करके आपके बिजनेस में डालते हैं। और वीसी जितनी भी फंडिंग करता है वो मोस्टली इक्विटी बेस होता है या कन्वर्टेबल डेब्ट होते हैं। ठीक है, आपने सपोज करते हैं कि इसके बाद आपकी जर्नी में आपने वीसी से फंडिंग भी उठा ली या फंडिंग भी उठा ली, सो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप होगा कि मुझे मिनिमम वायबल प्रोडक्ट अपना बिल्ड करना है, एक बेसिक प्रोडक्ट जिसके साथ मैं मार्केट में एंटर कर सकता हूँ। क्योंकि जब आप प्रोटोटाइप को टेस्ट करने जाते हैं, आप क्या करते हैं? अपने गली मोहल्ले में टेस्ट करते हैं, अपने पिन कोड में टेस्ट करते हैं, अपने सिटी में टेस्ट करते हैं। बट व्हेन यू क्रिएट द एमवीपी, वो एमवीपी ना वो एक बड़े स्केल पे जाता है। वो चीजें जो है आपको बनाने के लिए प्रोडक्ट चाहिए होता है। और आपका एमवीपी कुछ नहीं, वो एक बेसिक वर्जन होता है एक प्रोडक्ट का। सो अगर आप मैं बात करूं कि ठीक है आपने एमवीपी भी क्रिएट कर दिया और ये सारी चीजें, आपका जर्नी कुछ इस तरह से चली कि आपने क्या करा, पहले एक आइडिया लिया कि मैं चीजों को बनाऊंगा, आपने अपना बिजनेस प्लान बनाया।
आपने उसके बाद जो है प्रोटोटाइप बनाया, प्रोटोटाइप आपका बहुत अच्छा काम किया, आपने मार्केट में टेस्ट किया, अच्छा काम किया, आप मार्केट में पैसा उठाया, आपने फिर जो है एमवीपी को डेवलप किया। एमवीपी डेवलप करने के बाद आप उसे जो है टेस्ट करते हैं। सपोज कि आपने एक प्रोडक्ट बनाया, आपने टेस्ट करा, उस पर बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो उसके बाद जो है आपका ग्रोथ स्टेज होता है कि आपने उस समय से कस्टमर एक्वायर करना शुरू कर दिया, आपके पास पेइंग कस्टमर आ चुके हैं जो आपको पैसा दे रहे हैं, आपका बिजनेस उससे बढ़ रहा है। तो वो चीजें जो है उस जगह से जो है आपका ग्रोथ स्टेज चालू हो जाएगा। आपने बहुत सुना होगा कि ये कंपनी यूनिकॉर्न बन गई, वो कंपनी यूनिकॉर्न बन गई। 2021 में जो है 44 यूनिकॉर्न के करीब इंडिया को मिले थे, बट 2022 में जो है हमें जो है 24 यूनिकॉर्न से मिले। बट यू विल सी कि यूनिकॉर्न होते कौन है। उसकी भी एक है कि अगर कोई कंपनी यूनिकॉर्न बन गई तो मतलब उसने ऐसा क्या भी कर दिया कि वो यूनिकॉर्न बन चुकी है। सो होता क्या है, वो कंपनी जिसको जो है मार्केट से 1 बिलियन की यूएसडी की वैल्यूएशन मिल चुकी होती है, वो कंपनी यूनिकॉर्न कहलाती है। अभी रिसेंट में जो मैं कुछ कंपनियां बनी हैं, उसमें ओपन मनी करके है और बहुत सारी चीजें हैं, तो वो बने पड़े हैं। और अभी स्टार्टअप, अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में जो है एक देहात है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। रिसेंटली हमें लगता है कि बिहार को पहला स्टार्टअप देहात के फॉर्म में मिल जाए, शायद नेक्स्ट राउंड में वो स्टार्टअप बन जाए। और उससे क्या होता है कि यूनिकॉर्न होते हैं, फिर डेक्टाकॉर्न होते हैं, हेक्टाकॉर्न होते हैं, तो इस तरह से ना ये लिस्ट चलती जाती है। ओके, सो हमारे पास टाइम कम है, आई थिंक हम वी हैव ओनली 5 मिनट लेफ्ट। तो इफ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन यू गाइज कैन आस्क। Sir, in getting finance, there are various documents required, I guess. So, which kind of documents we should take for getting the finance from various investors? Okay, so when investor will ask you for the financial document, he is going to ask you the projection of the 3 to 5 years. In 3 to 5 year, what do you think, how much sales you can generate, how much profit you will generate, and if you are thinking in first or second year, I am going to be in loss. So which kind of how much loss it is going to show in your balance sheet. So you will have to generate the projected balance sheet. So usme balance sheet, profit and loss, revenue, everything is going, you will have to show. Sir, if we are going to start a business and we want a fund, then there must be certain risks which can arise in between the business. So, like if we want to raise fund from the investors, so how we will propose those risks to that investor so that we will get the fund easily without getting rejecting the offer from the investor. So see, when you are starting your startup, so obviously there is a risk because and investor understand the risk. That's why he is generating. So because if he wants to place, he want to do the safe investment, he is going to go and invest in the FD or RD. He will invest, but he knows कि investment में risk है, but वो आपको दिखाना है कि okay, there is a risk, but वो presentation आप पे depend करता है कि in which way you are going to tell us कि in initially there is a risk, these are the some challenges which we are going to face, but after some point of time it is going to eliminate. Because if I talk about my challenges, or when I started, I had no team, but I thought, okay, this is the challenges, but so I'm telling about my when I raised my fund from the VC, they ask, okay, you are not a tech guy, but how like you are saying कि, you are going to develop the tech product.
how it is all going to happen. I said, okay, I'm not a tech guy, but in market there is so many tech guy who wants to be the CTO, and they are CTO, so they will develop my product. And I already asked, okay, मेरे अगर दिक्कत ये है कि tech guy is the problem, I have some reference, I can connect with you, and you are also from the tech department, you guys suggest me, and हम उस पे बात कर लेते हैं. So it all depend कि वो challenges तो everywhere is, but how you are going to present. Yeah. So, like, if we have to get the investment from any investors, so we have to pitch. So, there is any idea how to pitch? See, when you are pitching to the someone, make your pitch small and crisp. Actually, try to complete your pitching in 5 to 7 minutes, because people want to listen you only 5 to 7 minutes. They will do the concentration on your pitch. After that, they will start to see here and there. The reason behind it, because if you are going to, when you will pitch them, first you will start with the problem. Okay, if they will connect from your problem कि यहाँ पे problem है, and if he is solving, तो वो उतना ही होता है, because after some point of time they will start to lose the contraction. So what you have to do when you are pitching to the someone, make the crisp your pitch only first in initial phase, pitch 5 to 7 minutes, and give them the chance to, they will start to ask the question. They will have a question, they will going to ask so many questions. उस question round में you can cover all the thing. And also कई बार होता है कि when people think कि मैं pitching में इतना करूंगा, but when they are sending the document, they send so many documents. When you are sending the document to the any VC, send a small document. If उतने में ही उसे पता चल जाएगा what is the problem, because the VC has very clear idea. Already he has invested in 50+ company. He has very good idea कि वो क्या होता है. And every VC in per year they are seeing 100,000+ pitch deck. तो बहुत clear idea होता है. Yeah. Thank you. Thank you, sir. Okay. Okay. So